Dear students, my name is Sudhiraj Verma and I'll be teaching you organic chemistry. I have done my BTech from IIT Kanpur in chemical engineering and MTech from IIT Bombay in petroleum engineering. The question is, why organic chemistry? Organic chemistry is one branch of chemistry which is very interesting and very systematic. And my whole approach in this will be so that all students should get interested in organic chemistry and be very comfortable with organic chemistry. And please understand, I am repeatedly telling you, this is a very easy branch of chemistry. But you have to take few things in mind before we go ahead. Unlike physical chemistry, where each and every chapter is loosely connected to each other, here in organic chemistry, each and every chapter is very strongly connected to each other. So let's take an example. From alkanes, we can make alkenes. From alkenes, we'll make alkyl halide. From alkyl halide, we'll make alcohols. From alcohols, we'll go to aldehydes. From aldehydes, we'll go to acids. So what you see, each and every chapter is connected to each other. So whenever you study organic chemistry, you have to study as a whole, together. Don't give breaks in between. So find your time where you can do all in all. Yes, last 2-3 chapters were carbohydrates, polymers, etc. You can do them later. But the main part of organic chemistry, trill nitrogen compounds, have to be done in one go. Other thing which we have done in this lecture is, because it's a wonderful medium where we can do animations, try to show you everything as much possible in 3 dimensions. Please remember, organic molecules are mainly in 3 dimensions. So lot of times students ask me, how does this happening? Why it is attacking from this side, why it is not attacking from this side? What is steric hindrance? All those questions you will be able to answer once you go through these lectures together. One more last point is, whole series has been made in mind so that people at board level can understand it very well. So the basic concepts have been made very clear. But the questions which we have taken is not only board levels but IIT level also. So that those students preparing for IIT level will be able to appreciate how to do those questions based on these basic concepts. And I can tell you, once you attend all these lectures, you will be so comfortable with organic chemistry that you are going to do very well in this. Thank you. Dear students, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बेसिकली वील स्टार्ट विद द चैप्टर. पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, इसका मतलब क्या है. थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं. जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सारी चीजें उसमें किसी को मालूम नहीं थी, धीरे धीरे डिस्कवर हो रही थी. उस वक्त क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच अलग से बनाई गई. उसके कई रीजन थे. लेवोसियर, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, वो एक फ्रेंच नोबलमैन थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले केमिस्ट्री में बहुत काम किया. अनफॉर्चुनेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम उनकी हत्या हो गई थी और इसलिए बहुत सारे और काम जो वो कर सकते थे नहीं कर पाए. उन्होंने उस वक्त ये प्रूव किया कि जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो कि लिविंग बींग्स या प्लांट्स या एनिमल्स में मिलते हैं, और दूसरे जो कि हमको और जगह मिलते हैं, जैसे कि अर्थ क्रस्ट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एटमॉस्फेयर में, जो कि लिविंग बींग से कनेक्टेड नहीं है. तो ब्रॉडली 2 तरह से क्लासिफाई किया गया. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाकी जगह मिलते हैं.
उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करके बनाने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली उन्होंने एक अपना अजम्पशन निकाला जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही लैब में बन सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए होती है। वाइटल फोर्स का मतलब एक स्पेशल फोर्स जो केवल लिविंग बींग्स में है। उसके बाद 1828 में वोलर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया और उसको हीट किया और उससे उनको यूरिया मिल गया। अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो ये सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, मींस एटम्स ने अपने आप को इधर से उधर रीअरेंज करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। इसमें ना हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना कुछ इसमें से निकाल रहे हैं। जितने एटम्स लेफ्ट साइड में है उतने ही एटम्स राइट साइड में है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अमोनियम साइनेट हमको मिनरल्स के साथ मिलता है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल है, और यूरिया एक ऑर्गेनिक केमिकल है। तो इस एक छोटे से रिएक्शन से ये प्रूव हो गया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो पूरी बेकार है, उसको हटा दिया गया। जैसे ही ये हुआ उसके बाद से बहुत सारे और साइंटिस्ट काम करने लगे इस पे। कोलबे ने 1848 में एसिटिक एसिड बनाया, बर्थलॉट ने 1856 में मीथेन बनाया, और ये सब फिर उन्होंने लैब में किए। ये रिएक्शन जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहले कैसे कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से उन्होंने एसिटिलीन बनाई, उससे उन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया, और ये सारा काम लैब में किया गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब लैब में बनाए जाने लगे। 1856 और आज की तारीख में अब अगर हम देखें तो हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जा चुके हैं। हाँ, ये सही है कि कुछ बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक डीएनए, आरएनए अभी लैब में नहीं बनाए जा सके हैं। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा, लास्ट ईयर जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने डीएनए का एक ह्यूमंस का नहीं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया, उसका डीएनए लैब में बना लिया है। मतलब क्या है कि धीरे धीरे अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। एंड फाइनली हम क्या चाहते हैं, या साइंटिस्ट क्या चाहते हैं, कि कोई भी इंसान, जानवर, उसको रिप्लिकेट किया जा सके, उसको दोबारा सिंथेटिक करके बनाया जा सके। होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आज की तारीख में ये बहुत पॉसिबल है। कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं है जो बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो महत्व है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ह्यूमंस, लिविंग बींग्स के साथ डे टू डे लाइफ में जुड़ी हुई है। अब वापस क्वेश्चन आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर प्लांट और एनिमल्स में ही नहीं, लैब में भी बन जाती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर देखा जाए तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन आज के टाइम में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक हिस्टोरिकली डिफरेंस आ रहा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, तो उसको कंटिन्यू किया जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन अब बन गई है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। लेकिन प्लीज रिमेंबर, सारे कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है, क्योंकि जो सबसे बेसिक कार्बन का कंपाउंड है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम एक एच हटा दें, उसकी जगह कुछ और ग्रुप लगा दें, तो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री है। अब क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक में तो बहुत
कुछ गिने चुने ही कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं और इतने हैं कि जिनको हम ना गिन सकते हैं और जो बहुत अभी डिस्कवर भी नहीं हुए। तो इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन टू कार्बन टू कार्बन बहुत लंबी चेन बन सकती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एटम्स है कार्बन टू कार्बन, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी बन सकता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चैप्टर आपने किया होगा, उसमें कैटिनेशन और ये पाई बॉन्ड पी पाई टू पी पाई, पी पाई टू पी पाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा होगा। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कार्बन की साइज के मारे होता है, वो छोटा है इसलिए होता है। कार्बन में बहुत स्ट्रेट चेन कंपाउंड बन सकते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड बन सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बन सकते हैं। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स को देखें तो साइक्लिक कंपाउंड में भी सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो रीजन क्या है कैटिनेशन का? रीजन है बॉन्ड एनर्जी। अब हम देखते हैं कार्बन के ग्रुप में अगर हम पीरियोडिक टेबल को ले तो कार्बन के नीचे सिलिका है, सिलिका के नीचे सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हमारे पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इनकी हम बॉन्ड एनर्जी को अब कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज 83 किलो जूल पर मोल, जो कि एक बहुत हाई नंबर है। उसके बाद जो क्लोजेस्ट है वो सिलिका या सल्फर के है जो कि अराउंड 54 है, जो कि नियरली 2/3 के आसपास है। और देखें फास्फोरस की 50 है, नाइट्रोजन की तो और कम 39 हो जाती है, ऑक्सीजन की 35 हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी के मारे कार्बन टू कार्बन कैटिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जिसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना स्ट्रांग कैटिनेशन होगा। तो उस टेबल से हम बता सकते हैं कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद सिलिका, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। खाली कार्बन में अपने से ही नहीं, दूसरे एटम से जो कि नॉन मेटल्स हैं, लाइक जो भी हमने देखे, उनसे भी बॉन्डिंग करने की बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी होती है और बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। तो अगर हम बॉन्ड देखें, कार्बन टू कार्बन 83 है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन इज 97 किलो जूल पर मोल, कार्बन टू ऑक्सीजन इज 86, कार्बन टू क्लोरीन इज 81। तो अगर हम देखें कार्बन टू ऑक्सीजन 86 है और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 34-35 के आसपास ही है, तो ऑब्वियसली कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी और ज्यादा आसानी से होगी। इसीलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं बहुत ज्यादा बनते हैं। अगेन अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि जब बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उससे क्या होगा, जो नेट मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी लीस्ट हो जाएगी। और ये चीज हमने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है कि जितना स्टेबल कंपाउंड वही होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हमको पढ़ना है, एज आई सेड, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत चीजें पढ़नी है, तो हमको इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने चाहिए। और इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हर तरीके का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। तो कभी ये तरीका यूज किया जाएगा, कभी वो तरीका यूज किया जाएगा, लेकिन आपको इन चारों तरीकों को समझ के आना चाहिए, क्योंकि इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आपको उसका जवाब लिखना पड़ेगा। तो ये चार तरीके हैं। पहला जो उसको हम बोलते हैं लोइस स्ट्रक्चर, दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा और ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस के साथ हम डिनोट करते हैं। फिर आएगा कंडेंस्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड फाइनली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
जो है धीरे धीरे मोस्ट एडवांस्ड है, बहुत आसान है बनाना, लेकिन इसको वही बना सकते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लोएस्ट स्ट्रक्चर। लोएस्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि बेसिकली कोई भी बॉन्ड होता है उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक लाइन के रूप में ड्रॉ कर देते हैं। मतलब अगर एक एटम ये है, इसका ये बॉन्ड है, और दूसरा है इसका ये बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तो हम इसको एक सिंपली लाइन बना देंगे। एक लाइन का मतलब है कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर 2 लाइनें हैं, इसका ये मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए। तो लेट्स टेक जो सबसे बेसिक कंपाउंड्स हैं, इथेन, इथीन, इथाइन, इनके हम लोएस्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। ये इथेन है हमारा। इथेन में हमने क्या किया, C2C एक लाइन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, C2H ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट हम देखें कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन है और 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कार्बन के पास इस पूरे में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दो हम वर्ड ऑक्टेट यूज कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऑक्टेट का मतलब होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट इज इथीन। इथीन में C2C डबल बॉन्ड है, तो अगेन ये 4 डॉट्स हो गए, ये 2 ये 2। तो यहां पे भी देखें तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इथाइन, इथाइन में यहां पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मिथनॉल। ना अब हम हाइड्रोकार्बन को छोड़ के और एटम्स की बात करें, यहां पे हमने ऑक्सीजन लिखा। अब लोएस्ट स्ट्रक्चर में इस जगह हमने ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं जो कि अनपेयर्ड थे, और 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। इसको ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, ये ड्रॉ किया भी जा सकता है और नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हां, अगर क्वेश्चन में कई बार ड्रॉ करने की जरूरत होती है, जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाना पड़ता है, तो फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपके लोएस्ट स्ट्रक्चर। इसके फायदे क्या हैं, ये बहुत डिटेल में होता है और हर बॉन्डिंग को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन एज आई सेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो इतने बड़े में बहुत स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक दूसरा तरीका निकाला है जिसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। अब हम वही मॉलिक्यूल्स इथेन, इथीन, इथाइन और मिथनॉल के कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमने CH3 लिखा है, तो इस कार्बन से 3 H बॉन्डेड है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो कार्बन के राइट में है उनसे बॉन्डेड है। इस कार्बन से ये 3 H है बॉन्डेड, इस कार्बन से ये 3 H नहीं बॉन्डेड है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है केवल। तो ये एक लिखने का तरीका है। इथीन में ये डबल बॉन्ड है, तो यहां पे हम डबल बॉन्ड इस तरह से लिख देते हैं। सिंगल बॉन्ड हम यहां कहीं भी ड्रॉ करके लिख नहीं रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इन सब में जो डिफरेंस है कि केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ किया जाता है, सिंगल बॉन्ड की सारी लाइनें हमने हटा दी हैं। तो इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है, और अगर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको लिखना जल्दी हो जाता है। जैसे कि अब ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन है। अब ऑक्टेन को हम लिखेंगे इस तरह से। अगेन कंडेंस तो है, स्टिल बहुत लंबा है, तो इसको एक फर्दर कंडेंसेशन कर दिया जाता है। कैसे? इस तरह से। इस CH2 होल 6 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में 3 CH2 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये और भी कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में थोड़ा समझ के लिखिएगा, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कई बार
इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। फाइनली जो हम करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइन फॉर्मूला। ये ड्रॉ करने में सबसे आसान होता है। जैसे कि अब ये है ब्यूटेन हमारा, इवन कंडेंस फॉर्म में इतना बड़ा हो गया, और ब्यूटेन को अगर हम लाइन फॉर्म में करें तो ये हो गया हमारा। अब ये 3 लाइनें, इसमें केवल 3 लाइनें हैं, तो आप बोलेंगे इसमें ब्यूटेन कैसे हुआ। इसमें जो रूल है कि 1 2 3 4 ये कार्बन हो गए, जहां पे भी एंड है लाइन का वो कार्बन है, जहां पे भी बेंड है लाइन का वो कार्बन है, तो ये 4 कार्बन हो गए। अब कार्बन टू कार्बन 4 वैलेंसी होती है, तो अगर हम इस कार्बन को देखें, इसने इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी बना ली है, इसका मतलब इसकी 3 वैलेंसी खाली है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर इस कार्बन को देखें, इसने 1 2 वैलेंसीज बना ली है, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, ये कार्बन नहीं लिखते हैं। तो ये अगर हम पूरा लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। एज यू सी, इसको लिखना बहुत लंबा काम है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली लाइन फॉर्मूला इस तरह लिख देते हैं। लेकिन लाइन फॉर्मूले में अगर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई एटम आता है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। अभी हम उसको देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। अब ये हमारा कंडेंस्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 9 कार्बन है, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ ज्वाइंट है। इसी को अगर हम लुईस स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे तो हमको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया, और अगर इसको हमको लाइन में ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से करके। ये सबसे आसान है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा आपको समझ के, ये टर्मिनल कार्बन है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये बीच वाला कार्बन है, इसमें वैलेंस आपको अपने आप एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब हम 2 ब्रोमोमीथेन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 2 ब्रोमोमीथेन कंडेंस्ड में इस तरह से ड्रॉ होगा, लोएस्ट स्ट्रक्चर में इस तरह से ड्रॉ होगा, और लाइन में इस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमने आपको पहले बताया था कि ये ब्रोमीन है, ये कार्बन नहीं है, और ये हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कार्बन और कार्बन से ज्वाइंट हाइड्रोजन नहीं लिखे जाते हैं लाइन डायग्राम में, उसके सिवा जितने भी एटम्स हैं सब लिखे जाएंगे यहां। नाउ साइक्लिक कंपाउंड्स इस तरह से आ गए, साइक्लोपेंटेन इस तरह से लिख दिया हमने, ये हमारा लोएस्ट स्ट्रक्चर है और ये हमारा लाइन डायग्राम है। साइक्लोहेक्सेन इस तरह से हो जाएगा, इसमें ये Cl है, तो यहां पे हमको Cl इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। फिर ध्यान दीजिए, क्लोरीन को हम लिख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं। लाइन डायग्राम एक्सेट्रा ड्रॉ करने के बाद अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो क्लासिफाई करते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में करते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। इसके बाद फर्दर इनका क्लासिफिकेशन होता है, मतलब एलिसाइक्लिक में ये सिंपली ओपन चेन हो जाएगा, साइक्लिक में ये क्लोज चेन कंपाउंड होंगे। इस तरह से इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। साइक्लिक में एक होता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में जितनी भी एटम्स हैं वो सब कार्बन के ही एटम्स होते हैं, इसलिए इसको कई बार कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोला जाता है। और हेट्रोसाइक्लिक में ज्यादातर तो कार्बन ही होंगे, लेकिन 1 या 2 नॉन कार्बन कंपाउंड भी उस साइकिल में आ जाएंगे। अभी हम इसके बाद उनको ड्रॉ करके उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। होमोसाइक्लिक और कार्बोलिक, जिसमें बेसिकली हमने क्या बोला था कि सारे कार्बन के ही साइकिल में होंगे। इसमें भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक।
दोनों में ही कार्बन है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है। मतलब ये किस तरह से बिहेव करते हैं कंपाउंड्स और किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एलिसाइक्लिक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मोनोसाइक्लिक, मतलब केवल एक सर्कल, और उसके सिवा बाईसाइक्लिक, स्पाइरो, ट्राईसाइक्लिक बहुत सारे होते हैं, मतलब एक से ज्यादा साइकिल। यहां पे दो हम मेंशन करेंगे केवल, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो, एंड इनको हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये दोनों अभी कोर्स में नहीं है। हाँ, आज से 7 साल 8 साल पहले का जो सिलेबस था उसमें ये कोर्स में थे, तो अगर आप इनके कहीं, अभी हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस अब आपको नहीं करने हैं। कमिंग टू एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं लेकिन स्पेशल टाइप कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत स्टेबल होते हैं। इसमें दो तरह से डिवाइड करेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, मतलब जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, विच आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। अगेन ये हमारे कोर्स में नहीं है, इनको हमको नहीं करना है डिटेल में। अब कमिंग बैक टू जो हमारा लाइन डायग्राम था जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या बताया था कि लुईस स्ट्रक्चर सबसे लंबा होता है, लेकिन उसको ड्रॉ करने के कई यूजफुल तरीके होते हैं। क्योंकि सपोज क्वेश्चन आया आपका कि आपको एसीटोन के सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं, तो अगर आप लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नहीं होगा, कंडेंस ड्रॉ करेंगे तो काम आपका नहीं चलेगा। अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स टोटल फाइंड करने हैं किसी भी कंपाउंड में, तो आपको उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो पहला काम, हम उसका लुईस स्ट्रक्चर का, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हम इसमें काउंट करना शुरू करेंगे कि हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं। ये लुईस स्ट्रक्चर है, प्लीज अंडरस्टैंड, पहला बॉन्ड हरदम सिग्मा बॉन्ड होता है, तो जितनी भी सिंगल्स लाइन दिख रही हैं आपको, ये 8, ये तो सिग्मा बॉन्ड होगी। अब डबल बॉन्ड पे आ जाइए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। तो अगर हम काउंट करें तो सिग्मा हमारे 8 + 1 9 हो गए, पाई हमारा 1 बॉन्ड हो गया। तो अगर सिग्मा पाई बॉन्ड आपको निकालना है, अगर आपको रेजोनेंस निकालना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बाद में देखेंगे करना है, तो आपको लुईस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन डायग्राम एसीटोन का इस तरह से होता है। तो अगर आप देखें लाइन डायग्राम से और कंडेंस से, दोनों से ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कंपलसरी था। एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स जो हमने अभी डिवीजन किया था, पहला है इथेन, ये आपका कंडेंस फॉर्मूला है। आइसोब्यूटेन, ये हमने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एसिड एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये सब आपके ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। साइक्लिक, साइक्लिक में हमारा ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, और ये हमारे होमोसाइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब इस साइकिल में तीनों कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, कोई दूसरा एटम नहीं है कार्बन को छोड़ के। इसी में हमने देखा था कि मोनोसाइक्लिक मतलब केवल एक साइकिल हो, बाईसाइक्लिक मतलब यहां पे 2 है, एक ये है एक दूसरी है, और इन दोनों के बीच में 2 कार्बन एटम कॉमन है, इसलिए हम इसको बाईसाइक्लो बोलते हैं। लेकिन एक दूसरा बाईसाइक्लो होता है, इसमें भी 2 साइकिल हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में केवल एक ही कार्बन एटम कॉमन है, तो इसका नाम कर दिया गया है स्पाइरो। अगेन दोबारा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, ना इनका नॉमेनक्लेचर हमारे कोर्स में है, तो मैंने इनका नाम लिख दिया है यहाँ पे बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। कैसे आया ये हम नहीं करेंगे, ये अब कोर्स के बाहर है। हेट्रोसाइक्लिक, अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, लेकिन एक कार्बन को छोड़कर नाइट्रोजन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 है, एक ऑक्सीजन आ गया। नाउ इनको हम
स्ट्रिक्टली कोर्स में नहीं है ये सब कंपाउंड्स, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे पिपरीडाइन हो गया, पिरिडीन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन हो गया, ये कई जगह यूज किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कई जगह रिएक्शंस में यूज होते हैं। तो कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, दो इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमारे कोर्स में नहीं है। और इनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड की ही तरह होती है, भले ही साइक्लिक होते हैं लेकिन ये बिहेव रिएक्शन वाइज ओपन चेन कंपाउंड की तरह करते हैं। उसके बाद एरोमेटिक्स, अगेन ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन या होमोसाइक्लिक के से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, नॉर्मल होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक से। ये हमारा बेंजीन है, यहाँ 6 कार्बन है, इनके बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर करेंगे तब देखेंगे कि क्या रीजन है एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक्स होते हैं और उससे क्या फर्क आता है। ये कुछ कॉमन है, एलेनिन, नैफ्थलीन जो हमारे कोर्स में है। इसी तरह से नॉन बेंजेनॉइड भी हैं हमारे पास। नॉन बेंजेनॉइड का मतलब जो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव नहीं है। एक एग्जांपल है ट्रोपोलिन, ये होमोसाइक्लिक भी है लेकिन ये एरोमेटिक भी है, लेकिन ये बेंजीन और उसका डेरिवेटिव नहीं है। इसी में हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। ये तीनों हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, फ्यूरान, थायोपीन एंड पिरिडीन, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। हमने क्या बोला था, हाइड्रोकार्बन से जहां पे C और H खाली है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम H को हटा दें और इसकी जगह कुछ और ऐड कर दें, लेट्स से OH, अब OH एक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो फंक्शनल ग्रुप्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, एसिड्स, बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हैं तो देयर आर नियरली 400-300 फंक्शनल ग्रुप्स ओवरऑल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हमारे कोर्स में बस 15 से 18 हैं जो हम नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो उनको आपको बता देंगे, और आपको केवल वही फंक्शनल ग्रुप, उनका नाम और उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, बाकियों के बारे में नहीं सोचना। इसके बाद एक टर्म आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि कई कंपाउंड्स एक दूसरे से सिमिलर हैं और केवल उनके बीच में एक CH2 या एक पर्टिकुलर यूनिट का डिफरेंस होता है। लेट्स से जैसे आपका इथेन हो गया, इथेन इज CH3 और प्रोपेन अगर देखें तो इन दो CH3 के बीच में एक CH2 ऐड हो गया। तो ये दोनों एक होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, ज्यादा सिमिलर है, इनका बिहेवियर भी सिमिलर है, केवल डिफरेंस क्या आ गया, बीच में एक CH2 का। सो इनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होने चाहिए। अगर एल्कीन है तो एल्कीन ही रहेगा, एल्काइन है तो एल्काइन ही रहेगा, सिर्फ कार्बन के नंबर थोड़ा चेंज हो जाएंगे। दिस ब्रिंग्स अस